Dear students, welcome to e-learning classes of Madhyamik Shiksha Vibhag, Uttar Pradesh. I am Bhavna from Government Girls Inter College, Vijayanagar, Ghaziabad, teaching science, and today we are going to study chapter 3, metal and non-metal of class 10th. So starting with the chapter, we are first going to study the physical properties of metals. Metals are solid in state, their state is solid except the mercury. Mercury is the only metal which is found in liquid state. And metals are hard, except few metals, potassium and sodium lithium. These metals are so soft that they can easily be cut with the help of knife. Metals have luster, metallic luster, that is they have their own shine, surface of the metals keep on shining. Metals are malleable, it means they can easily be drawn into sheets. मेटल को हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे घरों में जो एल्युमिनियम फॉयल होती है दैट इज़ अ शीट ऑफ एल्युमिनियम मेटल. मेटल्स आर डक्टाइल, इट मीन्स दे कैन इजीली बी ड्रॉन इनटू वायर्स. हम मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने चांदी के तार देखे होंगे, कॉपर के तार देखे होंगे, गोल्ड के तार. तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स जिसमें वो वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. Now next is metals have very high melting points. Few exceptions are there, gallium and cesium. And metals also have very high boiling points. Metals are good conductor of heat and electricity. Metals are good conductor of metals are good conductor of heat, and silver and copper are the best conductors of metals. And here are few exceptions, lead and mercury, they do not conduct heat. Metals are also good conductor of electricity, and silver and copper are the best example for this. लेकिन जनरली कॉपर को यूज़ किया जाता है क्योंकि सिल्वर जो है वो एक्सपेंसिव पड़ता है. मेटल्स आर सोनोरस, इट मीन्स मेटल्स को जब भी हम बीट करते हैं एक किसी दूसरे सरफेस से उनको टकराते हैं तो दे प्रोड्यूस साउंड. मेटल्स प्रोड्यूस साउंड. Now the physical properties of non-metals. Non-metals may be solid, liquid or gases. It means they are present in all three states, and non-metals are soft. All the non-metals are soft except the diamond. Diamond is the hardest natural substance found in the earth. Non-metals do not have luster. उनके पास metals की तरह shine नहीं होती है. Non-metals are not malleable. ये malleable भी नहीं होते हैं, sheets में convert नहीं हो सकते हैं. इनको जैसे ही किसी भी चीज़ पे beat किया जाएगा सो दे आर ब्रिटल इन नेचर, वो टूट जाएंगे. नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल. नॉन मेटल्स को हम वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. नॉन मेटल्स आर सॉलिड, दोज नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड्स दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, एंड नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स. नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट मीन्स दे डू नॉट कंडक्ट हीट. Non-metals are bad conductor of electricity. Graphite is the exception. Graphite is very good conductor of electricity. Now the chemical properties of metals. First of all, we are going to study the reaction of metal with oxygen. So all the metals react with oxygen with different rate and depend on their reactivity. So copper metal react with oxygen to form copper oxide when it is heated, and aluminum metal is also formed aluminum oxide when it is heated. And generally the metal oxides are basic in nature. It means when they react with water they form base. For example, when sodium oxide react with water it forms sodium hydroxide. Similarly, when potassium oxide react with water it forms potassium hydroxide. And some of the metal oxides are amphoteric in nature, and meaning of amphoteric it, these oxides behave as both acidic oxides and basic oxides. The reactivity of different metals is different with oxygen. For example, metals like potassium and sodium react vigorously with oxygen. Vigorously means they readily react with the oxygen, so they are generally kept in kerosene to prevent their burning. And magnesium is heated with oxygen, it produces white flame. Copper doesn't heat with oxygen. When copper is heated, it doesn't burn, it only form a black coating over itself.
Silver and gold, they are very less reactive metals, so they generally do not react with oxygen at high temperature also. तो सिल्वर और गोल्ड जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्ट नहीं करते हैं. Some of the metals like magnesium, aluminum, zinc, lead, they form a layer of metal oxide over themselves, and this is also which prevents their further oxidation. Now the reaction of metal with water. Metal react with water to form metal oxides and metal hydroxide. So here we see this potassium react with water to form potassium hydroxide, sodium react with water to form sodium hydroxide, and hydrogen gas is released in this reaction. And aluminum react with water to form aluminum oxide, and वाटर गैस एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज इन दिस रिएक्शन. तो ज़रूरी नहीं है कि सारी मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाएं या ऑक्साइड बनाएं. वो दोनों चीज़ बना सकती हैं. वो मेटल हाइड्रोक्साइड भी बना सकती हैं या फिर मेटल ऑक्साइड भी बना सकती हैं. द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल विद वाटर इज ऑल्सो डिफरेंट. जो ये मेटल की जो रिएक्टिविटी है ऑक्साइड्स के ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ, ये सब उनकी रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है. और ये अभी हम आगे पढ़ेंगे. रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर ये डिपेंड करती है कि जो मेटल हाईली रिएक्टिव है वो जल्दी से रिएक्ट करता है और जो मेटल लेस रिएक्टिव है वो थोड़ा देर में रिएक्ट करता है या रिएक्ट नहीं करता है. सो सोडियम एंड पोटेशियम दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल, सो दे कैन इजीली रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. और कैल्शियम जो है वो थोड़ा लेस रिएक्टिव है, तो वो लेस वायलेंटली रिएक्ट करेगा वाटर के साथ. एंड मैग्नीशियम कैन ओनली रिएक्ट विद हॉट वाटर. मैग्नीशियम केवल हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट कर पाएगा. और मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ये तो हॉट वाटर के साथ भी नहीं, इनको स्टीम की ज़रूरत पड़ेगी वाटर के साथ रिएक्शन करने के लिए. एंड मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. नाउ द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स. मेटल्स react with dilute acid to form salt and hydrogen. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. सिमिलरली जब एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है एंड इट इज़ अ सॉल्ट. एल्युमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब क्या हैं? सॉल्ट्स हैं ये, और साथ में ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं. सिमिलरली जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन. आयरन की जब हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो आयरन क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड. नाउ इन दिस सीक्वेंस मेटल्स का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है इस रिएक्टिविटी में वो है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन. तो मैग्नीशियम इज मोस्ट रिएक्टिव इन दीज मेटल्स एंड आयरन इज लेस रिएक्टिव. नाउ हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड. जब भी हम मेटल्स की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं तो इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है. इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर आर रिएक्टिंग विद 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड. सो कॉपर नाइट्रेट बन रहा है, इसमें वाटर बन रहा है और नाइट्रिक ऑक्साइड बन रही है. नाउ द रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट्स. मेटल की मेटल सॉल्ट के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है. तो अब हम यहाँ पे रिएक्शंस में देखेंगे. मैग्नीशियम की जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट से तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सो व्हाट मैग्नीशियम विल डू? मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस कॉपर ions from the copper sulfate solution and it will form magnesium sulfate and copper ion will released in the solution. Similarly zinc जो है, zinc भी कॉपर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बनाता है. जैसे जिंक की रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट के साथ करते हैं तो ये जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करके यहाँ पर जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर आयंस जो है वो सोल्यूशन में रिलीज हो गए. सिमिलरली आयरन भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि आयरन इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन दी कॉपर. तो आयरन भी कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना लेता है, कॉपर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं. अब इसी को हम यहाँ पर इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है. तो जैसे ही अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में अगर हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं उसमें जब हम मैग्नीशियम पाउडर डालेंगे तो व्हाट विल हैपन? मैग्नीशियम आयन विल डिस्प्लेस द कॉपर आयंस फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. तो जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा और जो कॉपर के आयंस है वो यहाँ पर नीचे हमको टेस्ट ट्यूब में नीचे मिल जाएंगे और सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट की जगह पर क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट.
नाउ द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या करते हैं हम, ऑल द मेटल्स आर अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. इट मीन्स द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज केप्ट एट द टॉप एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज केप्ट एट द बॉटम. तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल की, ये आपको लर्न करनी है बाय हार्ट. ये आपको लर्न होनी चाहिए कि कौन सा मेटल किससे ज़्यादा रिएक्टिव है. तो रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से, इस रिएक्टिविटी सीरीज पे बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं. तो पोटेशियम जो है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, उससे कम सोडियम है, उससे कम कैल्शियम, इसी तरह से सबसे कम जो है गोल्ड है. गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल. नाउ हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. अब इन मेटल और नॉन मेटल्स की रिएक्शन कैसे होती है, उसके लिए हम समझेंगे कि सबसे पहले मेटल्स क्या करते हैं. मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. इट मीन्स इनकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होती है उसमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो दे जनरली प्रेफर टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना प्रेफर करते हैं, इसलिए मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. अब इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं. यहाँ पर वी हैव सोडियम मेटल. अगर सोडियम मेटल का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, and if we see its electronic configuration, 8 2 8 1. In the first shell there are 2 electrons, in second shell there are 8 electron, and in the last shell there is only 1 electron. अब इसको अपनी स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट पूरी करने के लिए सोडियम को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. सो इट इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर सोडियम टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन. उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा कन्वीनियंट है एज कम्पेयर कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स ले. तो व्हाट सोडियम विल डू, सोडियम विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल, जितने इलेक्ट्रॉन वो देगा उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया यहाँ पर, तो सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया. सिमिलरली जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होगी. तो लास्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब इसको 8 पूरे करने के लिए 6 लेने से अच्छा है ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा. तो आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम विल कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम +2 आयंस. 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा. अब ये तो हो गई मेटल्स की बात. नाउ वी कम टू नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4. तो उनके लिए 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने से ज़्यादा ईजी उनके लिए है कि दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. सो दैट इज़ वाई दी नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है. अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं तो इट इज़ 287. अब इन द लास्ट शेल ऑफ क्लोरीन देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो उसको कंप्लीट करना है, स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको. तो उसके लिए इट इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर क्लोरीन टू अटेन 1 इलेक्ट्रॉन. 7 लूज करने से ज़्यादा उसके लिए ईजी होगा कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को ले ले. तो क्लोरीन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है. जब भी हम इलेक्ट्रॉन कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, और कोई भी सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है. यहाँ पर क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्योंकि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में. 1 लेने के बाद उसके 8 पूरे हो जाएंगे. तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ गया. सिमिलरली इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. तो इसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे तो 2 6. तो लास्ट ऑर्बिटल में ऑक्सीजन के पास लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. तो उसको 2 और चाहिए अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए. सो ऑक्सीजन विल एक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये क्या बना लेगा, O2-. मेटल और नॉन मेटल आयंस बनते हैं, उनसे कैटाइन और एनाइन बनते हैं. जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं उनको हम कैटाइन बोलते हैं. तो मेटल्स आर जनरली कैटाइंस, और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको हम एनाइंस बोलते हैं. तो नॉन मेटल्स जो है वो एनाइंस बनाते हैं. अब सोडियम क्लोराइड के एग्जाम्पल से हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करके कोई भी मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो यहाँ पर ये सोडियम है. सोडियम के पास सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो इसकी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जो अभी हमने पहले भी देखा था. नाउ वी हैव क्लोरीन. अब क्लोरीन की जो लास्ट ऑर्बिटल है, लास्ट शेल है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो व्हाट विल हैपन, सोडियम विल डोनेट इट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू दी क्लोरीन.
तो यहाँ पर सोडियम की ऑक्टेट भी पूरी हो जाएगी, जैसे ही इसकी लास्ट शेल से ये 1 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो इसकी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर क्लोरीन के पास जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर, तो इसकी भी लास्ट ऑर्बिटल जो है, लास्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। एंड दी सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन बोथ कंबाइन टू फॉर्म दी NaCl मॉलिक्यूल, सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ये। नाउ सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड भी रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 12 है एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 282 KLM। M शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके मैग्नीशियम आयन बना लेगा, कैटाइन, इट इज़ अ कैटाइन क्योंकि प्लस चार्ज है इसके ऊपर। सिमिलरली जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोरीन आयन बना लेगा, इट इज़ एन एनायन क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसने नेगेटिव चार्ज अटेन कर लिया है। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें लास्ट शेल में दोनों में ऑक्टेट पूरा हो रहा है। सो बोथ दी मैग्नीशियम आयन एंड क्लोरीन आयन दे बोथ आर स्टेबल आयंस एंड बोथ दीज आयंस कंबाइन टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। Now, what are ionic compounds? Ionic compounds are electrovalent compound, and electrovalent compounds are formed with the help of cation and anion. Cation and anion combine to form electrovalent ions. तो इलेक्ट्रोवेलेंट आयंस जो हैं वो एक तरह से अगर हम समझना चाहें तो इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन से बनते हैं। मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लेन देन की प्रोसेस भी बोल सकते हैं, जिसके थ्रू आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। नाउ कम टू दिस प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड जैसा मैंने बताया, दे आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर मेड अप ऑफ आयंस। उसके बाद दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन का मतलब जैसे आपने अगर साबुत नमक देखा हो तो जो डली होती है उसको क्रिस्टल बोलते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन स्टेट। एंड सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है घर में, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल आयनिक कंपाउंड के लिए। आयनिक कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, दे आर वेरी हाई। एंड आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे पेट्रोल, केरोसिन, उस सब में ये इनसॉल्युबल होते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। जब हम इनको मेल्ट करेंगे, आयनिक कंपाउंड्स को मेल्ट करेंगे या इनको किसी सोल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डिजॉल्व कर देते हैं तो उस स्टेट में दीज आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ अकरेंस ऑफ मेटल्स, जो बहुत सारे मेटल्स हैं जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये फ्री स्टेट में अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं। बिकॉज ये जो मेटल्स हैं सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, दे आर वेरी हाई लेस रिएक्टिव मेटल्स जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, so they are found in free state, but most of the metals are reactive, so they easily react with oxygen to form oxide, carbonate, sulfide, halides, etc. So these metals are found in naturally in earth crust in the form of oxides, carbonates and halides. So what are minerals? Minerals are the elements or compounds which occur naturally inside the earth crust. And what is ore? Ore is a mineral from which metal can be extracted. तो अब मेटल और मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस है? ऑल दी ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल दी मिनरल्स आर नॉट ओर्स। जिन मिनरल्स में मेटल होते हैं उनको हम ओर्स बोलते हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी की प्रोसेस में जो मेटल्स हैं उनको प्योरीफाइड फॉर्म में हम उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और मेटलर्जी। एंड व्हाट इज गैंग? गैंग इज द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर लाइक रॉक पार्टिकल और सैंड पार्टिकल। अब ये जो ओर होता है इसमें मेटल ऑक्साइड या मेटल का जो भी कंपाउंड है उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, जैसे सैंड पार्टिकल्स हैं, रॉक्स हैं, तो दीज इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड एज गैंग। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। अब हम पढ़ेंगे कि मेटल्स को उनके ओर से हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए 3 बेसिक स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर में हम क्या करते हैं, उस ओर को इकट्ठा करते हैं, एनरिच करते हैं, और उसमें से उसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, गैंग पार्टिकल्स हैं, उन सबको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ द मेटल। मेटल को रिड्यूस किया जाता है। एंड थर्ड इज द रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसमें क्या करते हैं, द गैंग पार्टिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द ओर, और इसके लिए अलग अलग ओर्स के अलग अलग मेथड्स होते हैं।
तो ये जो फ्लो डायग्राम है ये मेटलर्जी की प्रोसेस का ब्रीफ है, इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी मेटलर्जी को। सो हियर इज द ओर। अब जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की कैटेगरीज होती हैं, सम मेटल्स आर वेरी लेस रिएक्टिव, सम आर हाईली रिएक्टिव। तो हमने मेटलर्जी की प्रोसेस में 3 कैटेगरीज में मेटल्स को लिया है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम जो हमने पढ़े थे, ये जो मेटल्स हैं इनकी मेटलर्जी की प्रोसेस में केवल इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है उसकी मॉल्टन फॉर्म में। जो ओर है उसको मॉल्टन फॉर्म में लिया जाता है, मेल्टेड फॉर्म में लिया जाता है, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है और वी कैन इजीली ऑब्टेन दी प्योर मेटल। नाउ इन केस ऑफ मेटल्स विद मीडियम रिएक्टिविटी, वो 2 तरह के हो सकते हैं उनके ओर्स, कार्बोनेट ओर भी हो सकते हैं और सल्फाइड ओर्स भी हो सकते हैं। कार्बोनेट ओर्स के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने कंसंट्रेट कर लिया ओर को, उसके बाद उस ओर के साथ क्या होगा, अगर वो कार्बोनेट ओर है तो उसकी कैल्सिनेशन की प्रोसेस होगी। कैल्सिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है, हीटिंग ऑफ द मेटल कार्बोनेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में मेटल कार्बोनेट को हीट किया जाता है एंड दैट मेटल कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। अब सिमिलरली सल्फाइड ओर्स के केस में क्या किया जाता है, रोस्टिंग की प्रोसेस की जाएगी। इन द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग द सल्फाइड ओर्स आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो सल्फाइड ओर है ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इन द लास्ट स्टेप द मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन द मेटल। मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स और फाइनली हमको मेटल मिल जाएगा और लास्ट स्टेज में उस मेटल की रिफाइनिंग की जाती है। एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग वी जनरली टेक द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नाउ in case of metals of low reactivity, less reactive metals are generally found in the state of sulfide ores. So sulfide ores are first roasted and then the reduced sulfide ores are refined. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे मेटलर्जी की प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहले जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, उनकी मेटलर्जी पढ़ेंगे। तो लो रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो जनरली सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सल्फाइड ओर्स के लिए हम क्या करते हैं, हम रोस्टिंग की प्रोसीजर करते हैं। उसमें सबसे पहले मैं मरकरी का एग्जांपल ले रही हूँ। मरकरी इज फाउंड एज सिनाबार। सल्फाइड ओर जो मरकरी का है उसको सिनाबार बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मरकरिक सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस मरकरिक सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू मरकरिक ऑक्साइड। मरकरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो मरकरिक ऑक्साइड है ये इसको हीट किया जाएगा तो वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मरकरी में। तो इस तरह से हमारे पास जो सल्फाइड ओर्स हैं उसमें हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करके मरकरिक ऑक्साइड बना, फिर मरकरिक ऑक्साइड का रिडक्शन होता है, रिडक्शन के बाद मरकरिक ऑक्साइड हीट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मरकरी में। सिमिलरली कॉपर को भी कॉपर सल्फाइड ओर से हम इसी तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉपर सल्फाइड is heated in the presence of oxygen to form copper oxide and this copper oxide is again heated with copper sulfide and we can easily obtain copper molecules and sulfur dioxide gas is released in this process. Now metals in the middle of reactivity series, उसमें हम देखते हैं जैसे जिंक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जिंक कार्बोनेट को हम रोस्टिंग की प्रोसेस है, रोस्टिंग इज द प्रोसेस, मैंने आपको अभी बताया था पहले भी कि रोस्टिंग की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं मेटल सल्फाइड को। मेटल सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट होता है तो मेटल सल्फाइड मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मेटल ऑक्साइड से वापस से उसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो मेटल ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे मेटल ऑक्साइड से हमारे पास प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। और जनरली फॉर द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स वी यूज कोक। Coke as a reducing agent is used in the process of metallic oxide. Now last is the extraction of metals at the top of the activity series. तो reactivity series के जो top पे जो metals होते हैं they are highly reactive metals. For example potassium, sodium, calcium, aluminum, they are very highly reactive metals. तो इनके extraction में केवल इनका electrolytic reduction ही किया जाता है and in this process the इलेक्ट्रोलाइज्ड मेटल, इसी मेटल की कोई इलेक्ट्रोलाइट ली जाती है और जब इस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जाएगा इस इलेक्ट्रोलाइट में, देन व्हाट विल हैपन, द मेटल विल डिपॉजिट एट द कैथोड एंड द अदर नॉन मेटल प्रेजेंट इन द सॉल्ट ऑफ दिस मेटल इज डिपॉजिटेड एट द एनोड।
नाउ लास्ट प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी इज द रिफाइनिंग ऑफ मेटल. अब हमारे पास कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन, इन सब प्रोसेस के बाद जो मेटल हमारे पास आता है, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन प्योरीफाइड फॉर्म. इस मेटल को हम प्योरीफाई करते हैं, एंड दिस प्रोसेस ऑफ प्योरीफिकेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. इसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस को यूज़ किया जाता है इसमें. तो इसके लिए एग्जाम्पल, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में हम क्या करेंगे, उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं. जो मेटल, फॉर एग्जांपल हमको कॉपर को प्यूरिफाई करना है, सो व्हाट वी विल टेक, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विल बी टेकन एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और इसमें हम कैथोड और एनोड लेंगे. तो जो इसमें कैथोड होगा उसको हम बहुत पतली सी स्टेप लेंगे प्योर कॉपर की, और एनोड पर हमको जो कॉपर प्यूरिफाई करना है, जो इम्प्योर कॉपर है, उसको हम एनोड पे लेंगे. तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाएगा, तो व्हाट विल हैपन, इस ये जो कैथोड है, ये जो एनोड है, इस यहाँ से जो प्योर कॉपर होगा वो धीरे धीरे जाकर इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, और ये जो पूरा का पूरा एनोड है, ये फाइनली जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट होगी पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, एंड लास्ट में जो भी इम्प्योरिटीज बचेंगी दैट इज कॉल्ड एज एनोड मड. नाउ द प्रोसेस ऑफ कोरोजन. मेटल्स जनरली दे आर वेरी रिएक्टिव, सो दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और ये जो मेटल ऑक्साइड है ये धीरे धीरे उस मेटल की लेयर को हार्म करती रहती है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन. जैसे आपने तांबे के, कॉपर के बर्तनों पे भी देखा होगा, ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है, कोट बन जाती है, दिस कोट इज कॉल्ड एज कॉपर ऑक्साइड. उसी तरह से कि बारिश के दिनों में जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर जंग जिसको आप लोग बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन. इट इज कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन. अब ये जो प्रोसेस है कोरोजन की या रस्टिंग की जो प्रोसेस है, इसके लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए. मेटल रिक्वायर्स मॉइस्चर एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स ऑक्सीजन. इसको दोनों चीज़ चाहिए, एयर भी चाहिए इसको और मॉइस्चर भी चाहिए. अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ नहीं मिलेगी तो द प्रोसेस ऑफ कोरोजन विल नॉट टेक प्लेस. इसको हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं. यहाँ पर हमने 4 बीकर लिए हैं. इसमें सबसे पहले वाला जो बीकर है, इसमें हमने एनहाइड्रस सोल्यूशन लिया है. इसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड को डाला गया है जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसमें हमने एक आयरन नेल डाला है. उसके बाद इस सेकंड वाले बीकर में हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन की एंट्री तो है यहाँ पर, और यहाँ पर पानी भी है, लेकिन पानी के ऊपर हमने क्या किया है, अ लेयर ऑफ ऑयल. हमने एक ऑयल की लेयर इसके ऊपर डाल दी है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो यहाँ आयरन नेल तक नहीं पहुँच पा रहा है. और यहाँ पर क्या किया है हमने, यहाँ पर एयर टाइट है ये टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर एयर नहीं आ रही है, ओनली वाटर इज देयर, एंड इन द लास्ट कंडीशन बोथ वाटर एंड ऑक्सीजन कैन इजीली मीट विद द आयरन नेल. तो हम इस चारों बीकर में से केवल जो लास्ट वाला जो बीकर है, इसी में केवल आयरन नेल में रस्टिंग की प्रोसेस होगी, क्योंकि यहाँ पर इसको दोनों कंडीशन मिल रही हैं, द कंडीशन ऑफ मॉइस्चर एज वेल एज द कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन. नाउ हाउ कैन वी प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ कोरोजन. कोरोजन की प्रोसेस को प्रिवेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं. सबसे सिंपलेस्ट तरीका जो है, बाय अप्लाइंग द ऑयल और ग्रीस. हम ऑयल या ग्रीस किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर लगा देंगे तो उसकी जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ नहीं होगी. सेकेंड इज बाय अप्लाइंग पेंट्स. वो आपने देखा होगा घरों में एयर कूलर्स जो होते हैं उसके ऊपर पेंट किया जाता है टू प्रिवेंट द रस्टिंग. नेक्स्ट इज गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मेटल इज कोटेड विद द लेयर ऑफ जिंक. जिंक जो है इफेक्टिवली कम रिएक्टिव है, तो उसकी कोटिंग की जाती है अदर मेटल्स के ऊपर, तो वो कोरोजन की प्रोसेस को प्रिवेंट करता है. बाय टिनिंग की प्रोसेस में कोटिंग ऑफ टिन इज डन, एंड वी कैन ऑल्सो डू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक क्रोमियम, उनकी कोटिंग की जाती है. एंड द लास्ट मेथड इज बाय अलॉइंग. Now we will study what are alloys. An alloy is an homogeneous mixture of metal with other metals or non-metals. metals का किसी भी मेटल या दूसरे मेटल या नॉन मेटल्स के साथ जो मिक्सचर होता है उसको हम अलॉय बोलते हैं. होमोजीनस मिक्सचर मतलब उस मिक्सचर के सारे पार्ट्स में इक्वल कंपोजिशन होगा. फॉर एग्जाम्पल स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन. स्टेनलेस स्टील जो है वो आयरन, कार्बन, कोबाल्ट, निकल, ब्रास इन सब का अलॉय है. ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. नाउ जो मेटल्स के अगर अलॉय मरकरी के साथ बनते हैं तो दीज अलॉयज आर कॉल्ड एज अमलगम्स. थैंक यू.